Hello and welcome to CVR News English. You are watching CVR English Inside News, and these are the details. Addressing the 10th CII India LAC Business Conclave, External Affairs Minister S. Jaishankar outlined that many challenges facing developing countries in today's volatile and uncertain global environment. He noted that the long-term effects of the COVID pandemic have severely impacted these nations, adding to strain caused by the Ukraine conflict, which has disrupted food, fuel and fertilizer security. Dr. Jaishankar emphasized the high costs of borrowing for developing nations and pointed out the urgent need to de-risk the global economy from over-reliance on any single geography. He also stressed the importance of building reliable and resilient supply chains to better withstand future global crises. His remarks underscored the complex economic landscape that must be navigated through the new forms of international cooperation. Before we look at the potential of India-Latin America-Caribbean cooperation, a few words about the global economic scenario would be in order. The fact is that we are passing through an uncertain and volatile period where the accumulated stresses of the past and the impending challenges of the future make a very potent combination. We are all developing countries and therefore among those most impacted by the long-term consequences of the COVID pandemic. Indeed, the catastrophic impact of that event is hard to overstate. It has set back realization of SDG targets very considerably. On top of that, the implications of the Ukraine conflict for food, fuel and fertilizer security have been additional stress points. Even otherwise, the global economy was witnessing pressures of unviable debt, deteriorating terms of trade and hard currency shortages. The cost of borrowing, particularly for developing countries, has been exorbitant. This challenging backdrop is the reality that we must recognize as we explore new forms of cooperation. The economic lessons from these happenings are also something that we need to take into account. Clearly, there is a need to de-risk the global economy from the dangers of over-concentration in any single geography. But we also need to build reliable and resilient supply chains. At the same time, because we have now moved decisively, irrevocably into the digital era, we need to ensure trust and transparency. Before we look at the potential of India-Latin America-Caribbean cooperation, a few words about the global economic scenario. In a chilling case from Jaipur, Rajasthan, the body of a man was found on March 16 near the Mohana police station area. According to the DCP South Digan Anand, the half-burnt body appeared to be a murder victim, with evidence suggesting an attempt to destroy all traces of the crime. The deceased was identified as Dhanlal Saini, who has been suspicious of his wife, Gopali Devi, having an affair with the one Deen Dayal. When Saini confronted his wife about the relationship, Gopali Devi and Deen Dayal allegedly attacked him with an iron rod, leaving him unconscious. It is believed that he died at the scene. In an effort to erase the evidence, the couple reportedly placed the body in a gunny bag and discarded it on the roadside. Both Gopali Devi and Deen Dayal have been arrested and are in custody, with the investigation continuing. तो 16 मार्च की शाम को दोपहर बाद एक सूचना मिली थी कि एक आधी जली हुई डेड बॉडी मोहाना थाना क्षेत्र में मेन सड़क से थोड़ी दूरी पर ढलान के ऊपर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत मौके पर एसीपी मानसरोवर और एसएचओ मोहाना में टीम के पहुंचे। मौके के जो अलामात थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहां डंप किया हुआ था। न सिर्फ डेड बॉडी अनजान थी, बल्कि हत्या का जो अंदेशा था उस संबंध में भी कोई विशेष तरह का क्लू मौके के अलामात से हमें नहीं लग पा रहा था।
एक चैलेंजिंग वारदात थी, बट इसमें एक विशेष टीम का गठन ब्रेवो साउथ, एसीपी मानसरोवर, डीएसटी साउथ और सर्किल मानसरोवर की टीम के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर के किया गया, जिन्होंने लगातार 2 दिन प्रयास करके जो मृतक है, जो अननोन डेड बॉडी थी, उसको आइडेंटिफाई किया। मृतक का नाम धन्नालाल सैनी सामने आया। उससे टेक्निकल और जो मानव आसूचना है उसको एकत्रित करते हुए पीछे की तरफ बढ़े, तो पूरी वारदात का खुलासा इस प्रकार से हुआ कि मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी पत्नी, जिसका नाम गोपाली देवी है, उसके कुछ विवाहेतर प्रेम संबंध के बारे में मृतक को अंदेशा था और दीनदयाल नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग होने का अंदेशा होने के कारण मृतक ने इस चीज को लेकर के आपत्ति करने का प्रयास किया, जिसमें आवेश में आकर के मृतक की पत्नी गोपाली और जो सह आरोपी है दीनदयाल, उन्होंने एक लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेके पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद। सर, एक बड़ी कार्रवाई करी है सर, अभी जल्दी लास्ट मिली थी, उसको खुलासा किया क्लाइंट तो 16 मार्च की Former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot emphasized the need for both the ruling party and the opposition to work together for the welfare of the people and the state's development. He stated that it's up to the government to decide how much they involve in the opposition in the governance. Criticizing the BJP, he remarked that their behavior is inappropriate, that they lack experience and proper guidance. Despite this, he assured that the opposition would continue to cooperate with the government. पार्टी ने तय किया था, विधायक दल ने, जूली जी ने, दुतासा जी ने, इनको मौका देना चाहिए। नहीं नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इनको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और कांग्रेस ने लगातार, आप देख लीजिए, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। इनको समझ आना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर, इनके खुद के। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी दुतासा जी के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में, और जो बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्षी दल के लोगों को धरना देना पड़े यहाँ पर। धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो इनका व्यवहार रहा, मैं समझता हूँ तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता, बिना विपक्ष के पक्ष क्या है? सबको मालूम है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में पक्ष कुछ नहीं होता है। पर जिस रूप में इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के हाउस चला दिया। दुतासे जी को टाँगे बना करके बहस शुरू करवा दी गई। अगर इनमें साहस होता, नैतिक साहस, तो विपक्ष को बुलाते, निष्कासित समाप्त करते। उसके बाद में स्पीकर साहब को जो तकलीफ हुई थी, उसको वो बहस करने की बात करते। उसमें बहस होती पक्ष विपक्ष की, इसमें बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हुआ, एक तरफा बहस हो गई, आरोप लगा दिए गए, कोई मीडिया में खबर आ गई। इसके मायने नहीं होता कि आप उसको लेकर के हाउस के अंदर ही उसको इश्यू बना दो। ये जो सब कुछ किया गया, मैं समझता हूँ ये
अनुभव की कमी है, इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, इनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं। इस कारण से ये सब नौबत बनी है। अभी हम कहना चाहेंगे विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा इनके साथ में। विपक्ष पूरी तरह चाहेगा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हमारे लिए हैं, उस रूप में विपक्ष साथ देना चाहेगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगा इस मौके पर। धन्यवाद। पार्टी ने तय किया था, विधायक दल ने। Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma confirmed that 18 Naxalites were killed in an encounter under the Gangalore police station limits. He stated that the bodies of all 18 Naxalites have been recovered. However, the security forces also suffered a loss, as DRG Jawan Raju was martyred during the operation. Expressing his condolences, Sharma assured that the entire government stands in the support of the martyr's family and prayed for their strength during his difficult time. बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूँ। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ RJD MLA and former Chief Minister Rabri Devi criticized the ruling government, stating that the incidents of rape, theft and robbery are occurring in the state, yet the opposition is not allowed to raise these issues in the assembly. She questioned what their role would be if they are not permitted to address the public concerns. Taking ticket to Chief Minister Nitish Kumar, she mentioned that he kept referring to her as during discussions. She further accused the government of avoiding accountability despite the opposition's cooperation. Addressing the media, she urged them to question the Enforcement Directorate, Nitish Kumar and the Prime Minister about the inquiries made by the ED regarding her. अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में फिर कांग्रेस को और अब राजद को छोड़िए, बात छोड़िए। जो बात जब हम लोग हुए सदन में माननीय सीडीपी जी तो कैसे ना नहीं देता, विपक्ष मान ही नहीं रहा सरकार के विपक्ष। कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार में इतना हो रहा है, प्रभात डाउन है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है, बलात्कार होता है, गरीब बेटी के साथ दलित के हुआ है, दलित बेटी के साथ छोटा बेटी के साथ इस सब सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार। लोग बोलने नहीं देता है, जो बैठता है सदन इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना। बिहार के जनता का सवाल है ना, तो बिहार के जनता के सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाए? जो घटना होता है वो घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? अतः सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं,
कई गो जिला बनाए हैं मुख्यमंत्री बताए, कई गो ब्लॉक बनाए, कई गो प्रखंड बनाए, कई गो फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 गो फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। अशोक चौधरी आप पे पूरा बोलने लगे कि छोड़िए ना, अशोक तो फालतू के हैं। अशोक चौधरी मैडम नित्यानंद राय कोई के भांजे की हत्या हो गई है। चुप रहिए ना, हत्या हुआ आपस में सब दोनों भाई किया है हत्या, कोई दूसरा थोड़ी मारा है। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में कांग्रेस को और अब राजद को। वो छोड़िए, बात छोड़िए, जो बात जब हम लोग हुए सदन में माननीय सीपीटी जी तो कैसे ना Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath announced that officials will be stationed in tehsils to inquire crooked resolutions to the possible problems. This initiative aims to enhance governance efficiency and make administrative services more accessible to the public. इसके लिए अच्छी तहसील भवन की आवश्यकता थी और इसीलिए आज मैं स्वयं ही मिहीपुरवा में आया हूं, इस मोतीपुर में आया हूं, आप सबको समर्पित करने के लिए, इस तहसील भवन को करने के लिए आया हूं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां तहसील में जिन अधिकारियों की तैनाती होगी वे बहराइच में रहेंगे, नहीं, उनके लिए आवास भी यहीं बनेगा और यहीं पे कैंपस में रह करके उस समस्या का समाधान ही करेंगे। हमने पहले ही कह रखा है, जहां तहसील है, जहां ब्लॉक है, जहां थाना है, जहां सर्किल है, वहां के अधिकारी वहीं पे रहे। इसके लिए अच्छी तहसील भवन की आवश्यकता थी और इसीलिए आज मैं स्वयं ही मिहीपुरवा में आया हूं, इस मोतीपुर में आया हूं, आप सबको समर्पित कर। In response to the Punjab's government action against protesting farmers, Punjab BJP President Sunil Jakhar accused the government of conspiring to defame farmers, calling the move an example of low-level politics. Jakhar criticized the government for previously using farmers' names for political gains and now restoring to bulldozing their tents, highlighting the escalating tension between the state's ruling party and the protesting farmers. हिंदी में करने की बार के लिए करना था, हिंदी में पंजाबी कर दो, हिंदी में यार सर, जो कल से कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं उसको, और जो किसान लीडर हैं वो अभी भी हाईवे जाम कर रहे हैं। मतलब पंजाब सरकार का कहना है कि ये इंडस्ट्री के लिए किया गया है, पंजाब के हित के लिए किया गया है। जो कुछ भी कल हुआ है एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को बदनाम करने का एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, घटिया और बहुत ही घटिया राजनीति का प्रतीक है। इन्होंने किसान का नाम लेके कुछ सो कॉल्ड जो लीडर अपने आप को किसानों का लीडर कहते हैं उनको इस्तेमाल करके पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब के भाईचारक सांझ को जो आंच पहुंचाई है, जो इतने दिनों से तो बॉर्डर जो चाहे खनौरी बॉर्डर है चाहे शंभू बॉर्डर है वो बंद करा के रखा। एक नौजवान पंजाब के शुभकर्ण की यहाँ पे मौत हुई। इस सारे के जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार, सो कॉल्ड ये जो लीडर हैं अपने आप को किसानों का नाम लेके अपनी दुकानें जो लोग चला रहे हैं, जिन्होंने किसान की नाम को इस्तेमाल करके एक किसान और व्यापारी के बीच में दरार डालने की जो कोशिश की है, और उसके साथ में पंजाब की जो मेन अपोजिशन पार्टी है जो कि अब सिर्फ एक चीयर लीडर का रोल निभा रही है, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपने घुटने टेक रखे हैं। इन सारों ने मिलकर पंजाब का जो नुकसान किया है, शुभकर्ण की मौत के जिम्मेवार ये लोग हैं। उससे भी बड़ा नुकसान मैं मानता हूं कि जो घटनाक्रम कल जिस तरह से एक आपसी तालमेल के जरिए किसानों को नाम दे के, किसानी का नाम दे के जहां से उस प्रदर्शन को खत्म किया गया है, इसकी आंच जो है आने वाले समय तक किसानों की जब कभी भी कोई सही मांग, जेन्युइन मांग उठेगी तो उसको कोई भी अब उस नजरिए से नहीं देखेगा जो आज से पहले देखी जाती थी। इन्होंने किसान को बदनाम किया। सरकार की कार्रवाई को ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं? देखिए, सरकार ही इनको बिठाने वाली थी, अखौती लीडर्स को, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं।
सरकार ने ही उनको उठाया है। ये कोई वाई लेने के लिए नहीं, ये राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी। आज उन्होंने लगा कि ये जो किसान जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज अपना राजनीतिक महत्व खो चुके हैं। पंजाब के लोग आज जब इनके खिलाफ हो गए तो यूज एंड अब्यूज की पॉलिसी है। किसान के नाम को आज तक इस्तेमाल किया, अब किसान को उसी सरकार ने उखेड़ के वहां से उनके तंबुओं के ऊपर, जो कि वहां से आराम से हटाए जा सकते, बुलडोजर चला के एक मजबूत सरकार होने का इन्होंने हिंदी में करना, बाहर के लिए करना था, हिंदी में हिंदी में सर, जो कल से कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं उसको, और जो किसान लीडर हैं वो अभी भी हाईवे जाम कर रहे हैं। मतलब पंजाब सरकार का कहना है कि ये इंडस्ट्री। In response to the Karnataka's Assembly rejection of the Waqf Amendment Bill and the 4% reservation issue, Union Minister Prahlad Joshi accused the Congress-led Karnataka government of engaging in appeasement politics. He referred to the Supreme Court article under Article 15 Clause 1, which prohibits granting reservations based on their religion. Joshi also highlighted instances of land grabbing in the name of Waqf Board, citing the tragic suicide of a farmer in his constituency due to land disputes. He warned that such actions driven by appeasement would not succeed and vowed to raise the issue nationally. डीजी हिल्ली, केजी हिल्ली में वो केस जो है, उधर जिन लोग कांग्रेस पार्टी के एमएलए के घर को जला दिया था, हुबली में पुलिस स्टेशन को जलाने का कोशिश किया था, बहुत ही गंभीर मामला था, और सब लोगों के ऊपर केस वापस ले लिया। और ये 4% रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट अप टू 2 करोड़, तो क्यों चाहिए? ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर आर्टिकल 15(1) तो ये कहा गया ऑन रिलीजन बेसिस यू कैन नॉट गिव द रिजर्वेशन, ये तो बोला गया है। और वक्फ में कर्नाटक में क्या हो रहा है? वक्फ में कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है, फार्मर्स का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के एडजेसेंट टू जस्ट टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में ही फार्मर्स आत्महत्या क्यों? 1960 में इनका सील्डीड हुआ है। 1960 में जो सील्डीड हुआ था, उनका जमीन वक्फ पे नाम पे हड़प लिया और वो स्टैंडिंग क्रॉप पूरा हटा दिया, बुलडोजर कर दिया। वो उसी किसान उसी भूमि में आत्महत्या की। ऐसे बहुत इंसिडेंट है। तो बीजापुर में पूरा सिटी में बहुत ऐसे कुछ जो प्रॉपर्टी है कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार, कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा अपीजमेंट में लगे हुए हैं। एसडीपीआई, पीएफआई के ऊपर जो केसेस था वो भी विथड्रॉ करने का वो डिसाइड करके वो भी बहुत ही लीनियंस उनको दे रहे हैं। इसके कारण कर्नाटक एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक लैब। Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has announced that a special Kaveri Aarti will be held in Bengaluru on the evening of March 22nd, ailing with the World Water Day. The Aarti is a part of the broader initiative to raise awareness about the water conservation ahead of the summer season, with the government aiming to launch a campaign encouraging citizens to pledge to save water. Shivakumar emphasized that the event is a government-driven initiative focused on development rather than politics. Additionally, Shivakumar addressed the controversial renaming of Ramanagara, stating that it will be renamed as Bengaluru South. He hinted at some political interferences from certain ministers in Delhi, but assured that the state government is prepared to handle this issue legally. His remarks reflect ongoing political dynamics and the government's commitment to addressing both water conservation and regional concerns. Renaming Ramnagaram, BJP government, and they just tried to, we were not supposed to request them. In the constitution, Karnataka government has a right to name any name, whichever they want. But there was some circular, we sent it proposal, so some politicians, some ministers in Delhi have played a mischief in it, but we don't mind for it. We know how to do it as per the law. It will be named as, Ramnagara will be named as Bangalore South. Nothing is permanent.
So BJP is all set to protest today, sir, against the 4% reservation. Let they do If it has been whatever brought they for want. discussion and It is passed. our duty to protect all sections of the society. We want every section of the society be treated equally. Who have been deprived, that is our duty. Congress stands for all sections of the society. I don't know if anyone has been affected. Please let them file the police station complaint immediately. Don't waste time. Let investigation be done. I will request the Home Minister to just and the police department to give them protection as per the law and take the course as per the law. We will try to allow the speaker to get him good treatment. Sir, in Sankey Lake, Kaveri Harati is organized. See, 22nd is a day for water, Save Water Abhiyan. Save Water Abhiyan. It is a World Water Day. So Bangalore, before going to summer, we want to save water. That is why we want to educate. 1 month, we wanted to do a campaigning on the media, social media, that all of them has to take a pledge. We are requesting, including you, to take a pledge. Sir, are you prepared to handle this summer, sir? You please wait. If you are urgent, you can. We want to take a pledge. So all of us want to take a pledge. So in that, tomorrow evening, Friday, a good day, Shubha Muhurtam, Shubha Gadange, we are doing this. And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.